ادھر PID کمپلیکس میں تشریف لائے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے لیے. میرے ساتھ ہمارے سیکرٹری فائنانس بھی موجود ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں ہم نے آزاد کشمیر کا ایک تاریخی بجٹ پیش کیا ہے جو حجم کے لحاظ سے ریاست کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہے. اس موقع پر میں اپنے فائنانس ڈپارٹمنٹ سیکرٹری فائنانس سمیت پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. چیف سیکرٹری صاحب کا اور تمام دیگر ڈپارٹمنٹس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ساروں نے محنت کی ہے اور یہ 286 ارب روپے کا جو بجٹ پیش کیا ہے موجودہ جو فائنینشیل ایشوز تھی مدر لینڈ کی بھی اور ہماری بھی, ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کوئی بجٹ ڈیولپمنٹ یا نان ڈیولپمنٹ آپٹکس پہ ہم لوگوں نے نہیں کیا. ہم نے جو ایک فائنینشیل ایئر کے اندر آپ کی آمدن ہے جو آپ کے اخراجات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے کیے. آپ کو پیپر بھی ورکنگ شاید دے دیا گیا ہوگا. جناب وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق اور پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق ہم نے نمبر 1 ایجوکیشن سیکٹر کو فوکس کیا ہے. ریسنٹلی ہم لوگوں نے آزاد کشمیر کے اندر ایجوکیشن پیکج دی ہے. کالجز کے اندر بھی اپ گریڈیشن کی ہے اور ہائی سیکنڈری اسکول, ہائی اسکول, مڈل اسکول, اس کے لیے ہم لوگوں نے بجٹ رکھا ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر جو آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں, تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹل ہیں, رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں, BHU FAPs, ان کی جو مسنگ فیسلٹیز ہیں ان کی بلڈنگز کے لیے, ان کی اپ گریڈیشن کے لیے جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا اس میں کیا گیا. تیسرا, کیونکہ جو موجودہ ٹائم چل رہا ہے یہ سمر سیزن ہے اور الیکٹریفیکیشن کا بڑا ایشو ہوتا ہے, تو محکمہ برقیات کے اندر بھی جو ڈپارٹمنٹس کی نیڈ تھی الیکٹریفیکیشن کے لیے, نئے ٹرانسفارمرز پولز کے لیے, ان سب کو میٹ اپ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کیے. آزاد کشمیر کے اندر پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک ہم بنانے جا رہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جس کے لیے پوسٹیں اپروو کر کے دے دی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری فورس ہے, پولیس ہے, اس کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ, چاہے وہ ویپنز ہوں, چاہے ان کی ٹریننگ ہو, چاہے ہمارے تھانے چوکیاں ہیں, ان کو ہم لوگ اچھے طریقے سے اکوپ کریں اور وہ تاکہ کرائم کو میٹ اپ کر سکیں, چاہے سول کرائم ہے یا دیگر ہے. اس کے بعد 112 ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی فوکس کیا گیا ہے تاکہ اگر فلڈز آتے ہیں, اللہ نہ کرے جیسے 2005 میں زلزلہ آیا تھا, یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس پہ پہلے لوگ فوکس نہیں کرتے تھے. اس پہ بھی ہم لوگوں نے فوکس کیا ہے ڈسٹرکٹ وائز, تحصیل وائز, اور 2 نئے سینٹرز بھی ہم لوگ بنا رہے ہیں ڈسٹرکٹ نیلم کے اندر بھی. اسی طرح مہاجرین کا گزارا الاؤنس تھا اس کو بھی انہانس کیا گیا ہے. میڈیا کے حوالے سے جو ہمارا PID کا بجٹ تھا اس کو بھی ہم لوگوں نے انکریز کیا ہے. 9 ماہ کی 8 ماہ کی حکومت ہے جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ حکومت دی گئی, آزاد کشمیر کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا ہو چکا تھا کہ لوگوں کا اعتماد آلموسٹ ختم ہو چکا تھا گورنمنٹ کے اوپر, اور وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے دن رات محنت کی اور اپنی کابینہ کے ساتھ, اور آج میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم پارٹ آف دا کیبنٹ آئی ایز فائنانس منسٹر ایز ویل. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ 7-8 ماہ کے دورانیے میں وقت بہت کم تھا ہمارے پاس اور چیلنجز بہت زیادہ تھے, ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس کے اندر جو بہتری ہو سکے اسٹیٹ کے اندر بہتری کی جائے. کیونکہ اس سال جو ریونیو لاسٹ ٹائم رکھا گیا تھا فائنینشیل ایئر 25-26 میں ان لینڈ ریونیو وہ 85 بلین کا تھا, اس سے ہمیں شارٹ فال ہے. ایک تو جو بینکنگ سیکٹر کے اندر ہمارے ٹیکسز کا کلیکشن ہوتی تھی وہ 22% پہ کی گئی تھی, وہ سڈنلی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے رولس کے مطابق جو ان کا انٹرسٹ کم ہوا 10.15 پہ ہو گیا, وہ بھی ہمیں 12% کی ہمیں لاس ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ کے ایجوکیشن سیسز ہیں, پراپرٹی ٹیکس ہے, بجلی کی بات میں جو آپ کو ٹیکس ملتا ہے, یہ سارے ڈال کر 67 بلین ہم لوگوں نے کیا اور نیکسٹ فائنینشیل ایئر کے لیے ہم نے 75 ارب روپے کا رکھا ہے. ٹیکس کی آسانی کو بہتر کرنے کے لیے تاکہ یہ عام پبلک کو پتہ لگ سکے کہ آیا کہ اگر وہ کسی شاپ کیپر کو جب بل پے کر رہے ہیں تو اس کا ٹیکس ایکسچیکر میں جا رہا ہے. انلینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ہم نے آسان ٹیکس ایپ انٹروڈیوس کی ہے جو آپ کے ایپل پہ بھی اینڈرائڈ پہ بھی آتی ہے. آپ کو جب کوئی بندہ شاپ کیپر دکاندار آپ کو جب بل دیتا ہے آپ اس کو اسکین کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آیا کہ یہ بل فیک ہے یا اوریجنل ہے.
इंशाअल्लाह ताला हम लोग मज़ीद मेहनत करेंगे और इस इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हम लोग आगे लेके चलेंगे. उसमें हमें अपने स्टेट के लोगों को भी ताउन चाहिए होगा, गवर्नमेंट सेक्टर से भी हम लोग इसमें जो इनपुट डाल सकती है हम लोग करेंगे. इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर 4000 के करीब मुलाजमीन थे जो अरसा 10, 12, 13, 14 साल से एडॉक बुनियादों पर लगे हुए थे. उनको भी लास्ट कैबिनेट में हमने कंफर्म करके नॉर्मल मिजानी में लेकर आए. और ये एक परसेप्शन शायद हो कि उसमें कोई हमारा इंटरेस्ट था आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ. वो मुलाजमीन इस 7-8 माह की गवर्नमेंट के दौरान के लगे हुए, जिसका टेन्योर 2 साल से ऊपर है, उसको हमने किया बगैर किसी तसब के, बगैर किसी पोलिटिकल एफिलेशन के, बगैर पसंद और नापसंद के. महकमा जंगलात है, उसके अंदर बेलदार वाचस थे. वो लोग जो महकमा जंगलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, अल्लाह न करे जब आग लगती है वो सांप को बुझाने में अपना किरदार अदा करते हैं. वो अरसा दराज से वो कंटीजेंट पेड थे, नॉर्मल पे नहीं थे, डेवलपमेंट से हम उनको तनख्वाहें दे रहे थे. वो भी 800 के करीब जो मुलाजमीन और नॉर्मल मिजानिए पर आ गए. और दीगर जो दर्जा 4 के ग्रेड 1 के लोग थे, जनाब वज़ीर आज़म का ऐलान भी था फर्स्ट स्पीच जब वो कायदे अवान मुंतखब हुए तो उनको भी कन्फर्म किया गया है. शोधा पैकेज है, जो हमारी फोर्सेस के लोग थे शहीद हो जाते थे, ज़ख्मी हो जाते हैं, कुछ लोग पैरालाइज हो गए बिल्कुल ही, तो इसलिए उनके लिए भी एक पैकेज किया गया ताकि उनकी हौसला अफजाई हो, उनके ख़ानदान को, उनकी फैमिली को रोज़मर्रा की जो माशी प्रॉब्लम है वो भी फेस ना करनी पड़े. मैं मीडिया के दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये जितना टेन्योर हमारा गुजरा है, आपने हर कदम पर हमारी मावनत की है, हमें निशानदेही की है. क्योंकि मीडिया एक ऐसा पिलर है कि आपकी गाइडेंस के बगैर, आपकी निशानदेही के बगैर हम लोग कोई चीज़ हमें नहीं पता लग सकता अंदर बैठे बाहर क्या हो रहा है. तो आप हमें गाइड करते हैं, आप निशानदेही करते रहे, तो गवर्नमेंट ने और मीडिया ने मिलजुल कर चीज़ों को आगे लेकर चलना होता है और स्टेट की बेहतरी के लिए करना होता है. इसी तरह आपका यूनिवर्सल फंड था USF, उसका CEO लगाया गया, उसके पैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन लगने के बाद हमारे USF फंड में आ गए. इसके साथ साथ बैंक ऑफ एज को शेड्यूल करना, और ये मैं अपने आप को भी खुशकिस्मत समझता हूँ. मैं सेक्रेटरी फाइनेंस साहब का भी मशकूर हूँ, अपने प्राइम मिनिस्टर का हूँ, चीफ सेक्रेटरी का हूँ, बैंक की पूरी टीम का हूँ कि जो स्टेट बैंक की तरफ से लवाजमात थे नंबर 1 तक कि आपकी इक्विटी बैंक ऑफ एज की 10 अरब रुपये होनी चाहिए. वो 2 अरब 90 करोड़ थे जब हम गवर्नमेंट में आए, वो दिए. उसके बाद कोर बैंकिंग का उसका काम बड़ा स्पीडली जारी है. होपफुली अगस्त में एक ब्रांच आपकी लाइव हो जाएगी, फर्स्ट ब्रांच. फिर 42 फैक्टर्स थे जो स्टेट बैंक ने कंडीशंस भेजी थी, आपने वो 42 फैक्टर्स को मुकम्मल करके फिर आपने एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को. वो 2 जून को हमने की है. अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट बैंक ने हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है. और जो कानून है उनका वो ये है कि विद इन 8 वीक्स आपको वो रिप्लाई करते हैं. और मुझे पूरी उम्मीद है 8 हफ्ते 2 अगस्त या 3 अगस्त को पूरे होते, तो बीच में अगर ऑफिशियल छुट्टियाँ आ जाती हैं तो डेढ़ 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगी. इंशाअल्लाह ताला 2 अगस्त या 3 अगस्त को आपको लेटर आएगा कि बैंक ऑफ एज के शेड्यूल हो गया. और ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन स्टेट का बनेगा, सबसे बड़ा और पावरफुल इंस्टीट्यूशन होगा. रेमिटेंस के हवाले से आप देखें, जो डायस्पोरा के अंदर हमारे बहन भाई बैठे हुए, वो इसके थ्रू आप पैसे भेजेंगे. साथ हम अपनी इंटर एक्सचेंज कंपनी को भी कर रहे हैं, कश्मीर एक्सचेंज कंपनी को भी. तो बेशुमार मुश्किलात के बावजूद हमने कोशिश की है कि एक अच्छा बजट पेश करें और 7-8 माह में डिलीवर करें, ताकि इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर 27 जुलाई को जो इलेक्शन हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस इलेक्शन के अंदर जा रही है. और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अवाम की अदालत में हम लोग सरखरू होंगे, क्योंकि अभी दोबारा इजलास शुरू होना है. तो सेक्रेटरी साहब आपने कोई करनी है, तो आपने कोई क्वेश्चन आंसर करना है तो मेरा सवाल है, आपने बजट बहुत अच्छा पेश किया और आप मुबारकबाद में मिस्टेक इसलिए की है कि इस वक्त में आपने साथियों को बुला के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि जो रियासत में सूरत हाल है, हमारे जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के चीफ सेक्रेटरी साहब ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं खाली कुर्सियों के साथ. आप इस वक्त इस मामले में मुबारकबाद के मिस्टेक है, ये बताएं कि आप कहते हैं कि इतना अच्छा बजट. थैंक यू वेरी मच. आपने कहा कि बजट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. जहाँ तक आपने बात की है, हमारे चीफ सेक्रेटरी IG साहब, और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने कोई भी अगर प्रेस टॉक की है तो ये अवेलेबिलिटी भी होता है कि सम टाइम आपके कोलीग सारे अवेलेबल नहीं होते. उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसे राइट नेक्स्ट डे मैंने और मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने की है. गप प्राइम मिनिस्टर साहब इंटरव्यू देते हैं. जो मौजूदा सिचुएशन है वो आपके सामने है.
हमारा चार्टर ऑफ डिमांड जो 38 पॉइंट का था, तो मैं आज भी ये आपकी वसात से ये कहता हूँ कि वो चार्टर ऑफ डिमांड लें, हम लोग एक एक पॉइंट का नोटिफिकेशन देने के लिए तैयार हैं। अब उनमें 38 पे मैं बात करना शुरू कर दूँ तो वो लंबा हो जाएगा। उनमें से एक कोर इशू था, वो था 12 सीट्स का। जब प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की ज़ात मैटर नहीं करती, मैटर करती है प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर की चेयर। रियासत का वज़ीर आज़म चल के उनके पास गया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुजारिश की है कि 7-8 दिन दे दें, हम इसको इमिकेबली किसी तरीके से हल करेंगे, क्योंकि लेजिस्लेशन करने के लिए आपको 36 वोट चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 36 नहीं है वोट। हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में उनको दावत दी है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ दिया है, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कौमी असम्बली के अंदर अपना मौक़िफ़ पेश किए, पर वो इस चीज़ पर नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं जी हमने करना है, अगर आप सीटें ख़त्म भी करेंगे तो हमें पहले स्ट्राइक करने दें, मुजफ्फराबाद आने दें, फिर आप कॉल ऑफ करें। ठीक है, तो अभी भी मेरी दरख्वास्त है, आज़ाद कश्मीर की आवाम से दरख्वास्त है, ये सिस्टम आपका है। आज भी जो आवाम है, मतलब अगर वहाँ पर 5,000 बंदा है, 10,000 बंदा है, तो ये 1% है, 2% है। तो ये आप रियासत के साथ क्या करें? बजट मैंने दिए है, कल कोई और गवर्नमेंट आती है या हम कम बैक करते हैं, बजट आवाम के लिए, बजट किसी ने अपने घर लेके नहीं जाना। तो स्टेट के माहौल को बेहतर करने के लिए सिस्टम में छोटी मोटी कमी बेशी होती है। आपके पास एक स्मार्टफोन है, आप 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद एक आपको मैसेज आता है कि इसकी सॉफ्टवेयर या इसकी नई ऐप आई है, इसको अपडेट करें, तो आपको एक नोक पलक सवारनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो टर्माइल पोजीशन है विद इन फ्यू डेज हम इससे निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, आपने ये पूछना चाह रहा था कि इतनी चीज़ें क्योंकि जिस वक्त ये जैक के साथ एग्रीमेंट हुआ था, उस वक्त हमारा था कि हेल्थ कार्ड आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने, पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कमाल मेहरबानी की है, उन्होंने GB के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर और इस्लामाबाद के लिए हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है। हमारे लॉन्च उसमें मुझे करें, उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ फाइनेंशियल इशू आ रहे थे कि उन्होंने पेमेंट करनी है स्टेट लाइफ को। वो लास्ट टाइम फेडरल मिनिस्टर उमर कश्मीर अमीर मुकाम साहब थे, फिर चीफ सेक्रेटरी साहब की ड्यूटी लगी थी, वो चीज़ें क्लियर होगी, स्टेट लाइफ को पेमेंट होगी है, जो उनके पैनल हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल जो उनके पैनल पर होंगे, वो वहाँ से केटर होगा पेशेंट, इसका क्रेडिट फेडरल गवर्नमेंट को जाता है और इसका क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को जाता है। तो इसका क्रेडिट आज़ाद कश्मीर की आवाम को जाता है, आप समेत सबको जाता है। आज़ाद कश्मीर के माजूर डिसेबल लोगों के लिए गुज़श्ता बजट में कोई 9 अरब रुपए एंडोमेंट फंड मुख्तस किया गया था और सर्वे करवाया गया था कि इन लोगों को पैसे दिए जाएंगे। वो बजट इसमें इस बजट में शामिल है या नहीं, एक बात ये। दूसरा मेरा ये सवाल है कि जो पिछले साल टारगेट फिट किए गए थे कि आमदनी इतनी हमने हासिल करनी है, क्या वो टारगेट आपने पूरा किया या नहीं? नंबर 1 जो आपका सवाल है माजूर अफराद वाला, वो इन्वायरमेंट फंड है, उसमें जब सर्वे हुआ तो बेशुमार उसमें इश्यूज आ रहे थे, शिकायत आ रही थी, आम पब्लिक की आ रही थी कि एक शख्स है मेल और फीमेल, वो डिसेबल है, वो जब उन्होंने वो फैक्टर्स लगाए वो उसमें फॉर ही नहीं कर रहा। कुछ लोगों को फॉर एग्जाम्पल आप पर्सनली जानते हैं कि उनका राइट बनता है, तो हमने इनको कहा था कि इसको दोबारा स्क्रूटिंग करें और इसकी, क्योंकि जब तक शफाफियत को आप इंश्योर नहीं करेंगे तब तक ये पैसा नहीं, वो इन्वायरमेंट फंड पड़ा हुआ है और इंशाल्लाह जब उसका सर्वे होगा, अभी तो ये इलेक्शन आ रहा नहीं होगा, तो वो उसके बाद जो लिस्ट आएगी उसके मुताबिक जाएगा। दूसरा आपका था टारगेट्स का, देखिए जो लास्ट टाइम टारगेट सेट किया गया था IR का, आपके पास एक ही डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी तो आप लोगों ने 3 रुपये में ख़त्म कर दिए। IR का उन्होंने टारगेट असम्पशन पे सेट किया था, अनफॉर्चुनेटली आई वाज द पार्ट ऑफ द कैबिनेट एज वेल। ठीक है, डिपार्टमेंट कह रहा था कि हमें 70-72 पर करें, 85 असम्पशन पर हुआ, ऊपर जब 85 हुआ उसके बाद जो बैंकिंग के रेट से वो आपको 12.50 वो नीचे आ गए। सडनली एक आज़ाद कश्मीर के अंदर दोबारा माहौल ऐसा क्रिएट हुआ कि आपने क्या एग्रीमेंट किया जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स आपने माफ़ किया, आपने एजुकेशन सेस ख़त्म किया, दीगर इलेक्ट्रिसिटी से भी आपको टैक्स नहीं आ रहा। अगर वही डिपार्टमेंट की पहले देखी जाए तो फिर भी डिपार्टमेंट ने 72 में से 67 अचीव कर ली है। अभी ये जो 3 हफ्ते हो गए हर चीज़ बंद है, कारोबार रुक गया है सारा कुछ, तो ये नहीं तो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट हमने टारगेट सेट किया है नेक्स्ट फिजिकल ईयर में विल अचीव इंशाल्लाह ताला। सर ये बताना वफाकी वसूलात में आपको कितना हिस्सा मिला है इस बार जो टैक्स का जो फेडरल गवर्नमेंट 146 बिलियन 146 वेरिएबल ग्रांट्स हैं हमारी, डेवलपमेंट फंड इसके अलावा दूसरा डेवलपमेंट इसके अलावा है। आप तमाम डिपार्टमेंट में जो बजट में एक्टिविटीज़ या इनपुट देते हैं तो एक बोनस देते हैं, तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट 24 घंटे आपके साथ ही होता है, तो
इनको भी एक जो है वो बोनस जो है वो ये सेक्रेटरी फाइनेंस बैठे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जी PID इसी का को फायदा उठाना है। सर आटे में और बिजली में जो सब्सिडी है वो बरकरार रहेगी। बरकरार रहेगी। जनाब आपने बताई कि 2005 के ज़िला में जो स्कूल जो हॉस्पिटल जिनकी छतें अभी तक मुकम्मल नहीं है, तो उनकी 1 करोड़ रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिए। अच्छा मिनिस्टर साहब, एक मेरा सवाल ये है कि जो आपने हालिया तालीमी पैकेज दिया है, बहुत सारे नए स्कूल कायम किए हैं, वो अपग्रेड किए हैं, क्या उनकी जो ज़मीन हासिल करेंगे या बिल्डिंगें बनाएंगे उसके लिए भी रकम मुख्तस है कि नहीं है? सर जो तालीमी पैकेज दिया है उसका बिल्डिंग के साथ कोई तल्लुक नहीं है। एक ऑलरेडी प्राइमरी स्कूल है, वो मिडिल हुआ है, मिडिल हाई हुआ है, हाई सेकेंडरी हुआ है। इन फ्यूचर जहाँ पर आपको बिल्डिंग की जरूरत होगी वो एक अलग प्रोजेक्ट होगा। बजट में पैसा है या नहीं है? सर बजट का डेवलपमेंट का अलग है, ये रेकरिंग है, ये तनख्वाहों का था। ये जो तालीमी पैकेज है ये एक डिफरेंट चीज़ है और जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट चीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप दो चीज़ों को क्लब कर रहे हैं। जो हमने तालीमी पैकेज स्कूल में दिए 297 करोड़ का, वो पोस्टों का है, असामियों का सर है। पैकेज आ गया, नए जो प्राइमरी स्कूल रखे हैं आपने, बिल्डिंग तो डेफिनेटली बिल्डिंग स्कूल के रखा हुआ है उसकी, अभी ये टेंडर भी लगे पिछले दिनों। अच्छा। सर मेरा सवाल ये है सर जी कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम जो दिल्ली दूध की वजह से समाप्त हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने हुक्म दिया था जी कि आप कौन सी डोनेट वो कायम करें। हुकूमत ने उनको यकीन जानी कराई थी कि हम बजट में रखेंगे। सर हमने बजट में तीन डिवीजन हेडक्वार्टर्स में हमने कर दिए, फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री मुझे खत्म कर एक बनी सर सर अभी रखे हैं बजट में हमने। जी अच्छा ठीक है, उसके अलावा फूड अथॉरिटी के लिए जो असामियों की जरूरत थी वो भी हमने कर दी है। उसके अलावा सर लॉन्ड्री टनल के लिए क्या रखें? वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ। साहब आपने बताया कि ये सूरत हाल है, इसी सूरत आप दूसरा कार्य किसी और को मैंने एक भी नहीं किया सर। पहले भी मैं ये पूछ रहा था कि जो सिचुएशन बनी हुई है मुजफ्फराबाद में, पेट्रोल 500 से 600 ब्लेक मिल रहा है, मिल नहीं रहा, इसलिए गाड़ियों वालों ने बहुत ज़्यादा किराए बढ़ाए हुए हैं, लोग शहर आ जा नहीं सकते। ये तो गवर्नमेंट की पैदा करता सूरत हाल है, तो कब तक आटा भी खत्म हो गया। आटा सर देखिए जो पेट्रोल का बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की पैदा कर देनी है। गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि रियासती लोगों की जान और माल की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। एक पेट्रोल पंप है, इसमें ये भी इनसिक्योरिटी हो सकती है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए उसके साथ खेले तो फिर अगर उधर आग लग जाए, अगर ब्लॉक कर जाए देन हुज रिस्पॉन्सिबल। तो आगे मैंने आपको एक वन लाइनर बताया कि इंशाल्लाह सुन हम इस टर्माइन पोजीशन से बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बोतल में दिया जा रहा बोतल से ज्यादा खतरनाक है वो उसको हम चेक करेंगे, वो PM साहब ने आगे स्पीच में भी कह दी है। दूसरा मेरा सवाल ये है आपसे कि अब PR के हवाले से आज़ाद कश्मीर में जो टैक्स नंबर जारी होता है आज़ाद कश्मीर के लिए एंट्रियन नंबर जो वो पाकिस्तान में वैलिड नहीं है, तो हो गया एक्टिव टैक्स बिल इसमें आ गया। ये जून में भी अभी नहीं सर अगर किसी एक पर्सन स्पेसिफिक का इशू आ रहा है तो आप बताएं, तो हमने इंटीग्रेट कर दिया। जमा करनी पड़ती है आज़ाद कश्मीर की रिटर्न इशू ये आ रहा है, वो जो टैक्स पेयर है वो यहाँ वो मैं- जमा करवा रहा है और वो सर वही मुझे पता है, मैं ये एक्टिव टैक्स पे की लिस्ट में हम आ गए। अगर इसमें स्टिल इशू आ रहा है तो आप बताएं, मैं अपने सेक्रेटरी को बता देता हूँ। अफर हमारे सब आपका अगर ये इशू आ रहा है टैक्स पे इस तरह अलग तो ये आप बताएं, मैं सेक्रेटरी इंटरव्यू को बता देता हूँ। इशू और आ रहे हैं सर कि आप जो है ना तमाम आज़ाद कश्मीर में 10 अजला का वेंडर नंबर अलग अलग जारी कर रहे हैं, ये क्या है? ये वो तो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा ना, क्यों वजह? क्योंकि इसका होता है कि एक क्लाइंट है, एक जो है वो एक डिपार्टमेंट से वो पेमेंट लेता है, तो वो हर जगह पे क्यों उसको वेंडर जारी? ये गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या प्राइवेट सेक्टर की करें? गवर्नमेंट को वेंडर का हमारा अलग है। तो एक डिस्ट्रिक्ट कोड्स होते हैं, DDU कोड्स होते हैं यार, तो उसका जो टैक्स तो 101 में जा रहे हैं। सर आटे के बारे में पूछ रहा था। आटे का क्या हुआ सर आटा सर कुछ ट्रांसपोर्टेशन इसलिए नहीं आ रही कि वही मैंने आपको बताया कि हमें ये भी है, एक बंदा सब्जी लेकर आ रहा है, कोई चीज़ लेकर आ रहा है, तो हमें ये भी रेस्ट श्योर करना है कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो आ रही है, जहाँ पर उसने एंड यूज़र जहाँ पर बैठा है वहाँ तक उसे पहुँचने के लिए उसको सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी, एटमॉस्फेयर देखना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें इंशाल्लाह ताला सून रियासत इस टर्माइन पोजीशन से बेहतर आएगी और रियासत आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आपको दोबारा इजलास की दावत है, कोई गलती गुस्ताखी माजरत।